guys, welcome to our Brain Teachers channel. Today we will start our new chapter, that is the chapter number 14 for the 10th class, and chapter name is the statistics and हम हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी. So first we introduce about the statistics. What is the statistics and how we use in our day-to-day life. So first of all, in our government we see that after every 10 years government collected the data of the each family to knowing the how many people born, that is the death rate and the born rate, and that is basically the जनगणना जो 10 साल बाद की जाती है. जनगणना उसको पहले सर्वे के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है, फिर उसके बाद एक डाटा की फॉर्म में उसको हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. दैट इज बेसिकली डील्स विद द स्टैटिस्टिक्स. दैट इज द मैथमेटिकल ब्रांच. That is a branch of mathematics. It involves the gathering information, summarizing it, and deciding what it means. The numbers that result from this work are also called the statistics. For example, एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमारी कोई क्लास है, सपोज हम 10th क्लास में हैं सभी बच्चे, अराउंड 25 स्टूडेंट्स. तो टीचर क्या करता है, उनका 1 by 1 डाटा कलेक्ट करेंगे. जैसे किसी का नाम है डैश, उसकी एज क्या है, उसके मार्क्स कितने हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है. तो ऐसे ही सिमिलरली 25 स्टूडेंट्स का हम डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो हम करते क्या है स्टैटिस्टिक्स में, पहले हम गैदरिंग करते हैं. जो भी हमारा डाटा है सर्वे के थ्रू या अदर मीन्स से उसको गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेंगे, उसको समराइज करेंगे. आफ्टर दैट डिसाइडिंग व्हाट इट मीन्स, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा. जो भी हम नंबर्स हमें डाटा कलेक्ट किया है उसको एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके जब हम प्रेजेंट करेंगे, दैट डील्स विद द स्टैटिस्टिक्स. सो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, father of statistics. Who is the father of statistics? That is the Prasanta Chandra Mahalanobis and is also known as the father of the Indian statistics. So अगर हम other definition की बात करें, that is the discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. That is the basic definitions of the statistics, which is easy to understand, and after that we will tell the branches of statistics. So branches में हमारे पास data collection, descriptive statistics and the inferential statistics. और हम जो इस डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो हमारे पास ग्राफ भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ and pie graph and histogram. So that is the other way of chapter. In this chapter we solve the questions of the statistics, basically the mean, mode and median. So we will continue our exercise 14.1 that deals with the mean of the any data. So mean have also the 3 type questions. I mean जब हम किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी डाटा का मीन दैट मीन्स द एवरेज, जब भी हम किसी डाटा की एवरेज कलेक्ट करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और मीन मीन्स एवरेज, दैट मीन्स अगर हम एक क्लास में हैं सपोज, और हर एक क्लास में जो बच्चा होता है वो डिफरेंट एज का होता है. जैसे 10th क्लास में कोई बच्चा है, हर बच्चे की एज डिफरेंट है. सपोज एक की 10 है, एक की 11 है, 12 है, 13 है, 14 है. सो हम ओवरऑल क्या कहेंगे कि 10th क्लास में जो 10, 11, 12, 13, 14 की एवरेज है, दैट मीन्स 10th क्लास में हमारे पास 12 ईयर्स के बच्चे हैं.
सो एवरेज होता है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो. दैट मीन्स that is the our statistics. That is the general introduction of statistics. After that we describe the three methods of calculating the mean of the describe the three type to calculate the mean of any data. So first method, that is called the direct method. Second one, the assumed mean method. And third one, the step deviation method. To find mean, that is the average of any data we collected. So guys, that is our three methods to determine the mean, to find out the mean of any data we collected through the surveys या gathering. So first method to solve the question to find out the mean, that is the direct method, प्रत्यक्ष विधि, assumed mean method, step deviation method. So these are the three types, and why we solve this mean from the three methods. That is the reason behind it. Direct method is used when our data is in the simpler form. That means the calculation is easy. When we have the large numbers, that is the calculation is tough, so we use the assumed mean and the step deviation method. Because in the direct method, if we take the long numbers, so calculation is wrong. Yes, calculation is not easy. So we use our assumed mean and the step deviation method. So in first, that is the mean. Some symbols introduced for mean, that is the symbol x bar. In the direct method, if we take the long numbers, so calculation is wrong. Yes, calculation is not easy. So we use our assumed mean and the step deviation method. So in first, that is the mean. Some symbols introduced for mean, that is the symbol x bar. And in the direct method, we use the summation fi xi. In this, we use the summation fi di over summation fi plus a. In this, divided by summation fi, and in the step deviation, that is the summation fi ui over summation fi a plus into h. These are the three formulas we used in this exercise. In the direct method, we use the formula summation fi xi over summation fi. Summation, that is the sum of total values. That is the 25 students in the class, and we have the different marks. So total of the different marks is the summation. Or in the assumed mean method, that is the summation fi di over summation fi plus a introduced as the middle value of the xi. मीन की हमारी मिडल वैल्यू, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट स्टेप डेविएशन मेथड, that is the a plus summation fi ui over summation fi into h. So basically fi is deals with the frequency, कि कोई चीज हमारी कितनी बार रिपीट हुई है. फॉर एग्जाम्पल क्लास में डिफरेंट एज ग्रुप के जो बच्चे हैं,
मान लो 10 जो एज है वो 3-4 बच्चों की है, तो वो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हमारी एज 10 है, तो फ्रीक्वेंसी है 4. So h is the difference of the interval. So x bar is used as the symbol mean. That is the basic information. After that we will go through our question number 1. The question number first of the 14.1 exercise. So in this question, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? So first we understand the question. What the question says. So in question एक सर्वे किया गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंडर था. इसके अंदर उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया वो ये था कि उन्होंने 20 हाउसेस का सर्वे किया. प्लांट्स कितने थे, हर एक हाउस में कितने प्लांट्स थे इन अ लोकेलिटी. तो हमें मीन निकालना है प्लांट्स पर हाउस. जैसे हमने बात की थी, पहले एग्जाम्पल लिया था कि एक क्लास में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है. हमने उन सब का मीन निकालना है कि एवरेज एज सबकी कितनी है, मोस्टली एज कितनी है, ठीक है. सो जैसे एक घर में हमारे पास 10 प्लांट्स हैं, अगले में 11 हैं, अगले में 12 हैं, तो हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या कह सकते हैं कि एक घर में ऑलमोस्ट 11 प्लांट्स हैं. सो मेथड हम कौन सा यूज करेंगे और वाई. 3 मेथड से हमारे मीन कैलकुलेट करने के. फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड वन इज द स्टेप डेविएशन मेथड. सो in this question we use the direct method. And why? That is the question why. Because in the first question calculation is very easy. Number is the 1 2 1 5 6 2 3. So calculation is easy, so we use the direct method. So in the direct method we use the first we form the table. We have given the number of plants and fi, that is the number of houses, frequency. मतलब ये टोटल हमारे पास 20 हाउस हैं. दैट इज 2 3 4 9 6 15 16 17 18 19 20. हमें दिया था टोटल हाउस हमारे पास कितने हैं, 20, जो कि हम इसको बोलेंगे समीशन fi, ठीक है. सो जो फर्स्ट घर होगा उसमें 0 से 162. सो हमारा जो फॉर्मूला था एक्स बार मीन को फाइंड आउट करने का वो था समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई. समीशन एफ आई एक्स आई है 162 एंड समीशन एफ आई है 20. सो व्हेन वी डिवाइड दिस टर्म दैट इज द 8.1. We have the answer 8.1. So that is the mean number of plants per house. कि हर घर में हमारे पास जो एवरेज हम बोल सकते हैं वो हमारे पास 8.1 प्लांट्स हैं, ठीक है. That is the method of solving the mean by the direct method. Simply हमें xi फाइंड आउट करना है, इंटरवल का मीन, हर एक इंटरवल का मीन. आफ्टर दैट एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का जो सम आया है उसको हम डिवाइड करेंगे. दैट इज द सिंपलर मेथड, बट वी यूज फॉर द सिंपल कैलकुलेशन. व्हेन द डाटा इज गिवन इज सिंपल फॉर्म, सिंपल नंबर्स, सो वी यूज दिस मेथड. व्हेन कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट देन chances of mistake is higher, so we use the other method, assumed mean and the step deviation method. So our second question is easy, so you try yourself by the direct method. We go through the third question, which is a very important question and have the different approach. So third question is that we have the daily pocket allowance
which is given, that is the 11 to 13, 13 to 15, that is our interval. And after that, number of workers. That is the 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4. So in which we use the other method, that is the step, that is the assumed mean method. Second type. So we see what we will do in this question. So we have given the data, daily pocket allowance interval and number of workers. कितने workers को, 7 को, 6 को मिला, ये है हमारा FI. इसके अंदर हमारा जो नया कंसेप्ट क्या है, इसमें हमें एक वैल्यू मिसिंग है, दैट इज द F. सो हमें इसकी जगह जो दिया गया है वो है, हमें मीन की वैल्यू गिवन है यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करते थे, दैट इज 80. सो इन दिस क्वेश्चन वी यूज दिस वैल्यू and find out the missing frequency of this question, and that is a very important question, chances of higher coming in the exam. So we use the assumed mean method. In this we describe the term di rather than xi. So first of all, this is simple. xi mean 11 and 13 का हमारे पास 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24. That is the higher term. Calculation is difficult, so we use the assumed mean method. In this method, we find out the di. Di, that is the a. What is a? xi का जो middle term है, लोअर एंड अपर साइड से हमें 1, 2, 3 टर्म्स स्किप करनी है. 1, 2, 3 जो मिडल टर्म हमारी आई वो हमारी है कैपिटल ए, जो हमारा इसका सेंटर है. सो हमने इसमें करना क्या है, जो xi है हमारे पास, सब में से हमने इस 18 को माइनस करना है. जब हम 18 को 18 में से माइनस करेंगे, दैट इज 0. 12 में से 18 को माइनस करेंगे, -6. सिमिलरली -4, -2 एंड 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, 4 and 6. That is the easier term. After that we multiply di with the fi. That is the 7 into 6 -42, 6 into 4 -24, 9 into 2 -18, 0 into 13 0 and f into 2, that is the 2f, and 5 into 4 20 and 4 into 6 24. So in this question we take the sum of fi's, that is the 44 plus f हमारा as it is रहेगा क्योंकि हमने फाइंड आउट ही f करना है. सिमिलरली समीशन fi di, दैट इज द 40 प्लस 2f. ये हमारा कैसे है, 2f एज इट इज रहेगा, f वाली टर्म ऐड नहीं होगी इसमें. 40 कैसे है, पहले हमने इन दोनों को सम अप किया, दैट इज द 44, और नेगेटिव टर्म्स जो है हमेशा होता सम है आएगा माइनस, दैट इज अवर 84. -84 एंड प्लस 44 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास दैट इज द -40. दैट इज अवर -40 रहेगा. ठीक है. आफ्टर दैट वी पुट द फॉर्मूला. वी यूज द assumed mean method, step deviation method and direct method. Then we use
this particular method. If in the exam we just written as the calculate the mean, so you use any method if you like, anyone. But if in the exam mention specially कि find out the mean by the assumed mean method, so we calculate by this formula, otherwise marks is 0. So third type is so first we tell one thing going through the third method, step deviation. In the question number 6 we have the interval this type 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64. In this question 50 to 52 हमारे पास क्या था, इंटरवल 52 से ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा 53 से स्टार्ट है. पहले हम इस इंटरवल को सही करेंगे. आफ्टर दैट क्वेश्चन इज सेम. इंटरवल को सही करेंगे कैसे, अगर इसमें से हमारी जो डिफरेंस है 2 का है इसमें इंटरवल में, इसमें से हम क्या करेंगे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे. जो हमारा गैप रहेगा इंटरवल का वो 2 ही रहेगा, दैट इज ठीक है. सिमिलरली 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो नया इंटरवल बनेगा वो हमारा दिस टाइप. ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास जो ये हमारा नया इंटरवल आया है, इसमें से जब हम xi फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे, या तो यही मेथड है 14.5, 15.5, 51.5 एंड 52.5. तो मीन हमारे पास सेंटर में 2 टर्म्स है, इनके भी सेंटर में 50 आएगा, हमारे 51 आएगा, दैट इज 51. या फिर हम इन दोनों का सम करेंगे 59.5 एंड 52.5 एंड वी हैव द 102/2 दैट इज द 51. सो इजीली हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द 54, 57, 60 and 63. So after that we use any method on this question and solve the question. I just tell this different concept कि अगर हमारा इंटरवल सेम ना हो तो उसको पहले हमने सेम करना है, xi फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट क्वेश्चन इज सेम. सो लास्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन method, and in this we solve the question number 7. That is little bit difficult. We have given the concentration of SO2 in the ppm, जो हमारी एनवायरनमेंट में होती है गैस. इसका इंटरवल कुछ इस टाइप का हमें गिवन है.
आफ्टर दैट एफ आई गिवन है हमें 499,242 एक्स आई हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन में डी आई कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट यू आई कैलकुलेट करेंगे। एंड आफ्टर दैट एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे। So in the step deviation method we have the more parts। एक्स आई हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, डी आई भी हमें कैलकुलेट करना आ चुका है assumed mean मेथड से। इसमें एक स्टेप ये हमारा डिफरेंट रहेगा, जो हमारा डी आई आएगा उसको हम फिर से एच से डिवाइड करेंगे। एच मतलब इस इंटरवल का डिफरेंस जो कि सेम रहेगा हमारा, ठीक है। So in this we use the term ui instead of xi and di. So in this question xi, that is the difference average of interval, that is the 0.02, 0.04, 0.06, 0.10, 0.18 and 0.22। एंड आफ्टर दैट डी आई में हमने क्या करना है, ए अपर से एंड लोअर से टर्म्स इक्वल स्किप करके जो हमारे पास सेंटर में आएगा वो हमारा ए है। अगर हम 0.02 में से 0.10 माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 0.08 माइनस के, 0.04 माइनस के, 0.04, यहाँ हमारी टर्म मिसिंग है 14, 18 एंड 0.22, 0.08 and 0.1। So in this question we have the 1, 2, 3, 4, 5, 6 term. So if we remove the two terms from this, two terms from, we have the two terms, we choose any other a। हम इसको भी a कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी। सो हमने 0.10 को यहाँ पर a कंसीडर किया, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से a माइनस करेंगे। सो आफ्टर दैट हमने करना क्या है, यहाँ तक तो हमारा एज्यूम्ड मीन की तरह ही सेम है। आफ्टर दैट जो इंटरवल का डिफरेंस होगा, दैट मीन 0.04 में से 0 माइनस करेंगे, यही रहेगा। 0.08 में से 0.04 माइनस करेंगे, 0.04 ही रहेगा। तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, 0.04, और a हमने जो लिया था इसमें 0.1, ठीक है। उसके बाद इस di को हमने h से डिवाइड करेंगे 0.04 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रहेगी -2, -1, 0, 1, 2, 3। आफ्टर दैट एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। जो हमारा एफ आई का सम होगा, समीशन एफ आई, वो होगा दैट इज इक्वल टू 30। एंड जो हमारा समीशन एफ आई यू आई का सम होगा दैट इज इक्वल टू -1, बिकॉज 8 और 2 10 और 6 16, 16 में से -17 गए, माइनस के 1। सो कैलकुलेशन इज इजी इन दिस मेथड। सो वी यूज द फॉर्मूला, in this formula is little bit difference। समीशन एफ आई यू आई आ जाएगा यहाँ पर, समीशन एफ आई इनटू एक टर्म ऐड होगी एच, जो कि हमने 0.04 इंटरवल का जो डिफरेंस है। सो ए जो हमने लिया था यहाँ पर 0.1, समीशन एफ आई यू आई -1 ओवर 30 इंटू एच कितना है हमारे पास 0.04। वी सॉल्व दिस 1/10
प्लस -1/30 इंटू 4/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे, 0.1 एज इट इज रखते हैं। इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी -0.00133, और जो हमारा इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा 0.09867 ppm। तो ये हमारी एवरेज आ गई। ठीक है, हमने बस इसमें डिफरेंस क्या है, स्टेप डेविएशन में h ऐड होता है और एज्यूम्ड मीन मेथड में a ऐड होता है। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ हम यहाँ पर xi लेते हैं, सिर्फ ये टर्म कंसीडर करते हैं। सो गाइस, ये हमारे 3 मेथड थे मेन